Hello everyone, this is Aman Mittal welcoming you all back to a special session on G20 wherein we shall be talking about significance, prospects and concerns of G20. So this session is not only important from mains and interview perspective, but it will also give you few important details about G20 from prelims perspective. We shall be seeing Riyadh summit, that is the G20 summit of 2020 which took place in Saudi Arabia, and few of the important points of the G20 declaration. But our emphasis on the today's topic would be on the significance, prospects and concerns of G20. So let us begin this session, and to all the new learners who have got associated with us for the very first time, let me introduce them to some benefits of an academy subscription. So if you take an academy subscription, then you get access to all the educators, their courses, their classes on an academy's platform. Also you get all the classes on an academy as live classes. That means all the classes on an academy are on real time basis, which makes sure that the environment of class is very much interactive and engaging. इसके साथ आपको टेस्ट सीरीज मिलती है एंड यू ऑल्सो गेट डाउट क्लियरिंग सेशंस एट रेगुलर इंटरवल्स, जो ये इंश्योर करते हैं कि आपका पीरियोडिक असेसमेंट्स होते रहें और कोई भी ग्रे एरिया ना बचे of yours during this preparation of civil services examination. To get an academy subscription, you have to download an academy's learning app on your mobile phone and choose plus category and the category of the examination that you are preparing for. In our case, the category would be UPSC civil services examination. After that, you will get multiple options to choose the duration of an academy subscription, which will range from 1 month to up till 36 months. The recommended duration of an academy subscription is 1 year or 2 year. 1 year का अगर आप सब्सक्रिप्शन चूज करते हैं then it will cost you 49,500, और अगर आप 2 साल का सब्सक्रिप्शन चूज करते हैं then it will cost you 72,000 rupees. You can avail extra 10% off using my code NAMAN, NAMAN. So my code does not only ensure a discount of 10% but also personal guidance and my mentorship to you all. अगर आप मेरा कोड यूज करते हैं तो आपको जो फ्लैट डिस्काउंट मिलेगा उसके बाद आपकी 1 साल की प्राइस रिड्यूस हो जाएगी टू 44,550 और 2 साल की प्राइस आपकी रिड्यूस हो जाएगी टू 64,800 रुपीज. इन अ सिमिलर मैनर इफ यू ऑप्ट फॉर ऑप्शनल कैटेगरी कोर्सेज तो वहां पे 1 साल का सब्सक्रिप्शन प्राइस है 27,500, और अगर आप मेरा कोड यहाँ पे यूज करेंगे तो अगेन आपको 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा एंड द फाइनल प्राइस वुड बी रिड्यूस टू 24,750. Now let us come to our session, that is our topic of the day is G20. So we shall be looking at the importance, that is significance, and few of the prospects and concerns of G20. So as I said कि recently Saudi Arabia ने 2020 G20 summit को host किया था, and so this particular summit is called as Riyadh summit. It becomes important from the mains perspective and also direct questions can be asked to you at the interview stage. Prelims point of view से भी आपको काफ़ी चीज़ें G20 के regarding पता होनी चाहिए, like the membership of G20 and also few of the key declarations of G20, not only in the 2020 year or of the current year but also in its past years. इस सेशन को मैं प्रोसीड करूं उसके पहले मैं आप लोगों के साथ एक अप्रोच शेयर करना चाहता हूं ऑन इंटरनेशनल रिलेशंस. इंटरनेशनल रिलेशंस स्टूडेंट्स बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड कर देते हैं एंड एट द एंड दे end up with lots and lots of confusion with respect to international relations. तो इस अप्रोच को अगर आप फॉलो करेंगे विच आई एम ट्राइंग टू गिव इट टू यू, देन डेफिनेटली यू विल फाइंड इंटरनेशनल रिलेशंस अ वेरी इजी सब्जेक्ट एंड अ वेरी गुड मार्क्स फेचिंग सब्जेक्ट. देखिए इंटरनेशनल रिलेशंस में what all things you have to deal with. तो पहली चीज आपको डील करनी पड़ती है बायलैटरल रिलेशंस के साथ. Secondly, you have to deal with international organizations. Thirdly, you have to deal with regional organizations, which also may include regional agreements or regional trade pacts like RCEP. एंड फाइनली आप यहाँ पे डील करते हैं विथ मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस एंड मल्टीलैटरल एग्रीमेंट्स, जो रीजनल ऑर्गेनाइजेशन से काफी मिलते जुलते हैं लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है.
तो ये सारी चीज़ों के साथ जब आप इंडिया को लिंक करने की कोशिश करते हैं, तो माय बेसिक अप्रोच एंड दिस इज व्हाट आई सजेस्ट टू ऑल ऑफ यू इज कि आप सबसे पहले एक साइड इंडिया को ड्रॉ करें, और एक साइड अगर आप किसी बायलैटरल रिलेशन को पिक कर रहे हैं तो आप उस कंट्री को पिक करें, उस कंट्री को एक बॉक्स में रखें, एंड देन ट्राई टू ब्रेन स्टॉर्म दैट वॉट इंडिया कैन गिव टू दैट पर्टिकुलर कंट्री एंड हाउ इंडिया कैन बेनिफिट from that particular country if both, that is India and that particular country, are enjoying good relations, or if the relations are to be made more important, or if the relations have to be strengthened further. तो इंडिया क्या दे सकता है उस पर्टिकुलर कंट्री को, और इंडिया उस कंट्री से क्या फायदे ले सकता है. दिस इज द बेसिक अप्रोच. ये आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग करनी है. अगर आप मेरा मस्ट रीड करेंट अफेयर्स सेशन जो मैं अनअकैडमी पर रन करता हूँ ऑन डेली बेसिस, अगर आप ये अटेंड करते हैं तो डेफिनेटली ये अप्रोच अभी तक आप सीख चुके होंगे. जो भी स्टूडेंट्स मुझे वहाँ पे फॉलो करते हैं वो डेफिनेटली इस अप्रोच अभी तक सीख चुके होंगे, और उन्हें आइडिया लग गया होगा कि आईआर में आपको बेसिकली कैसे आंसर्स को स्ट्रक्चर करना होता है. सिमिलर फैशन में अगर आपको कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के साथ डील करना है तो यहाँ पे आपको फोकस करना है कि इंडिया को उस इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्या फायदा है. इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पे फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहा हूँ. फॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में मैं काउंट कर रहा हूँ लाइक ऑर्गेनाइजेशंस लाइक यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक एंड few of the specialized organs of United Nations and also the institutions, other institutions of World Bank. तो जो फॉर्मल इंस्टीट्यूशंस हैं, जिनका प्रॉपर चार्टर है, जिनके रूल्स ऑफ प्रोसीजर सेट हैं, जिनकी वाइड मेंबरशिप है, जिनके बेसिकली डिसीजंस बाइंडिंग हैं एंड दे हैव द एनफोर्सेबल पावर्स, मैं वहाँ पे उनको काउंट कर रहा हूँ. एंड रीजनल ऑर्गेनाइजेशन, रीजनल ट्रेड पैक्ट्स में यू कैन इंक्लूड एससीओ लाइक forums, you can include RCEP, you can include ASEAN and similar forums. और मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस में जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे बड़े बड़े कंसल्टेशन फोरम्स हैं बट दे आर इनफॉर्मल, आप उनको काउंट करेंगे लाइक G20, G7, ब्रिक्स. ऑल दीज आर बेसिकली मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशंस or basically international organizations at the informal stage, that is they do not have the enforcing power. These are informal international organizations, international platforms or consultative forums जहां पे basic idea is to hold wide or broad consultations and also extensive deliberations between different set of countries. तो अगर आप यहाँ पे अलग अलग तरीके, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस के साथ डील कर रहे हैं तो ये जो बेसिक आइडिया है आपका ब्रेन स्टॉर्मिंग करने का, इसे आप कॉमन रखेंगे. देन यू विल अडॉप्ट अ कॉमन अप्रोच विथ रिस्पेक्ट टू द कैटेगरी ऑफ द कंट्रीज इन बायलैटरल रिलेशंस और द कैटेगरी ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस. जैसे अगर मैं बायलैटरल रिलेशन में किसी एक स्पेसिफिक कंट्री की बात करूं, फॉर एग्जांपल मैं मालदीव्स की बात करता हूं, तो यहां पे कुछ पॉइंट्स तो कॉमन रहेंगे लाइक व्हाट इंडिया कैन गिव टू अ पर्टिकुलर कंट्री. सो इरिस्पेक्टिव ऑफ द सेकंड कंट्री मेंशन्ड, वहां पे कोई भी कंट्री मेंशन्ड हो, इंडिया के पास कुछ लिमिटेड चीजें हैं, इंडिया के पास अपने कुछ एडवांटेज पॉइंट्स हैं जो इंडिया ऑफर कर सकता है, नॉट ओनली टू अ पर्टिकुलर कंट्री बट टू other international organizations and even to regional organizations and regional trade agreements. तो इंडिया जो ऑफर कर सकता है वो हमेशा कॉमन रहेगा. लाइक इंडिया कैन ऑफर ह्यूज मार्केट, इंडिया कैन ऑफर इट्स स्किल्ड ह्यूमन रिसोर्सेस, इंडिया कैन ऑफर इट्स जियो स्ट्रेटेजिक इन्फ्लुएंस इन द साउथ एशियन रीजन. सो दीज आर सम ऑफ द थिंग्स दैट इंडिया कैन ऑफर टू मोस्ट ऑफ द कंट्रीज. इसी तरीके से इंडिया को क्या रिक्वायरमेंट है, वहां पे भी कुछ चीजें कॉमन है, तो आप वो चीजें यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं. फॉर मोर इंफॉर्मेशन प्लीज ज्वाइन मी ऑन मस्ट रीड करेंट अफेयर्स. हम वीकली बेसिस पे एक दो बायलैटरल रिलेशन या एटलीस्ट आई मस्ट से कि हम एक दो इंटरनेशनल रिलेशन से रिलेटेड टॉपिक डीप में कवर करते हैं. अब मैं बात करने आ रहा हूं ऑन दी
ऑन आर टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज G20। तो G20 एक इनफॉर्मल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है ऑफ 19 कंट्रीज प्लस यूरोपियन यूनियन। इसको मैं फर्दर आपको समझाऊंगा, बट बिफोर कमिंग ऑन टू दैट, लेट मी गिव यू एन अप्रोच as to how to deal with such kind of organizations, informal organizations। तो हो सकता है क्वेश्चन आपके ऊपर G20 से रिलेटेड आ जाए, या G7 से रिलेटेड आ जाए, या ब्रिक्स से रिलेटेड आ जाए, बिकॉज हर साल इनकी सबमिट्स होती हैं, मोर और लेस हर साल इनकी सबमिट्स होती हैं, और इसीलिए हर साल ये फोरम्स न्यूज में रहते हैं। अब ये फोरम्स के साथ कुछ कॉमन कंसर्न्स हैं, इनके कुछ कॉमन सिग्निफिकेंस हैं। तो हम जब सिग्निफिकेंस देखेंगे तो वो जो कॉमन सेट ऑफ सिग्निफिकेंस है दैट विल अप्लाई टू ऑल दी इंटरनेशनल इनफॉर्मल फोरम्स और प्लेटफॉर्म्स। जैसे G20 की मैं बात करूं तो G20 का रिप्रेजेंटेशन बहुत वाइड है, and so it makes it different from G7। so this is definitely a point of difference between two countries। लेकिन अगर मैं एरियाज ऑफ कन्वर्जेंस की बात करूं, कॉमन एरियाज की बात करूं, तो G20 G7 ब्रिक्स के साथ इंडिया का क्या कॉमनैलिटी है, इंडिया यहां पे क्या कॉमन फाइंड करता है। सो फर्स्ट पॉइंट इज दैट दीज फोरम्स आर बेसिकली providing not only India but all the countries, all the member countries, an effective platform for active engagement and candid discussions। तो ये प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड कर रहे हैं हर एक मेंबर कंट्री को एक प्लेटफॉर्म, एक स्टेज वेयर एक्टिव एंगेजमेंट कैन टेक प्लेस and candid discussions can take place। Since these do not have charters, well-defined charters, well-defined rules and procedures like the international organizations। तो international organizations के पास charter है, उनका अपना rules है, procedure है, लेकिन इन platforms के पास ये सारी चीजें नहीं है। That is why we are calling them as informal international platforms। इनके डिसीजंस बाइंडिंग नहीं होते हैं, इनके डिसीजंस एनफोर्सेबल नहीं होते हैं, एंड दीज प्लेटफॉर्म्स डू नॉट हैव एनफोर्सिंग पावर। एंड ड्यू टू ऑल दीज थिंग्स हियर to hold discussions between each other it becomes very much easy। यहाँ पे डिस्कशंस इनफॉर्मल मैनर में आगे बढ़ सकते हैं, यहाँ पे डिस्कशंस कैन बी टेकन अप इन इवन बिट्स एंड पार्ट्स। तो यहाँ पे बेसिकली आपको एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप एक्टिव एंगेजमेंट कर सकते हैं एंड कैंडिड डिस्कशंस कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे बेनिफिट क्या मिलता है सारी ऑर्गेनाइजेशंस में, ये सारी चीजें मैं दोबारा रिपीट करूंगा जब मैं G20 के साथ डील करूंगा। एज ऑफ नाउ आई एम गिविंग यू अ सिंपल अप्रोच टुवर्ड्स इंटरनेशनल रिलेशंस, क्योंकि आज हमारा टॉपिक है ऑन अ इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म दैट इज G20, और यू कैन कॉल इट एज एन इनफॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। इसीलिए मैं आपको अप्रोच डिटेल में प्रोवाइड कर रहा हूं अबाउट डीलिंग विथ ऑल सच काइंड ऑफ क्वेश्चंस। तो सेकंड हमारा टॉपिक है, सेकंड यहां पे हमारा जो सिग्निफिकेंस है ऑफ G20 G7 और ब्रिक्स, any kind of international informal organization would be that it basically provides you an opportunity to discuss transnational issues। Now, no matter how many members are present in a particular organization, you definitely can raise transnational issues in that particular consultative forum। Why? Because transnational issues are transnational in nature, that is they impact each and every country, though not in equal manner, but definitely there is an impact of a particular issue on each and every country। so they provide an opportunity कि आप इस particular transnational issues को pick करें on a platform like this which is informal। तो what are few common transnational issues? कुछ common transnational issues हैं like terrorism, like climate change। so these are few
ट्रांसनेशनल इश्यूज, मनी लॉन्ड्रिंग एक कॉमन ट्रांसनेशनल इशू है जो हर फोरम में बार बार पिक किया जाता है, इरिस्पेक्टिव ऑफ द मेंबर्स, नंबर ऑफ मेंबर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर फोरम। तो ये दूसरा सिग्निफिकेंस बनता है ऑफ सच इंटरनेशनल इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स। तीसरा यहाँ पे जो प्लेटफॉर्म है जो G20 के साथ स्पेसिफिक है, दैट इज इट ऑफर्स साउथ नॉर्थ और यू कैन से नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन। अब यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हैं G7 को। G7 बेसिकली वॉज कॉल्ड एज G8 बिफोर 2014-15। 2014-15 में रशिया ने क्रीमियन पेनिनसुला को एनेक्स किया एंड सो इट वॉज एक्सपेल्ड आउट ऑफ G8 ऑर्गेनाइजेशन और G8 ग्रुपिंग। जब उसको एक्सपेल किया गया फ्रॉम G8 ग्रुपिंग, सिंस देन G8 इज कॉल्ड एज G7। सो G7 comprises of highly developed nations. They comprise of highly influential nations, influential in terms of geostrategic position and in terms of economic and political terms। तो ये वो कंट्रीज हैं जो पूरे वर्ल्ड को बेसिकली हाई लेवल पे इन्फ्लुएंस करती हैं। लेकिन G7 में देयर इज ओनली प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन, एज देयर इज नो वॉइस of either emerging economies, developing economies, or even those of LIDCs और लो इनकम डेवलपिंग कंट्रीज। तो यहाँ पे सिर्फ वो कंट्रीज अवेलेबल हैं जो वेल डेवलप्ड है, जो आपस में अपने इश्यूज डिस्कस कर सकती हैं। सो दिस काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म इज डेफिनेटली ऑफ लेस सिग्निफिकेंस देन G20 kind of platform, क्योंकि G20 as the name suggests has wider representation, जिसमें ना कि सिर्फ डेवलप्ड नेशंस हैं बट उसमें इमर्जिंग इकोनॉमीज भी आती हैं। उसके पूरी मेंबरशिप की मैं आपको डिटेल्स दूंगा, मैं बस एक बार आपको ये अप्रोच बता दूं, देन आई विल कम ऑन टू G20। सो इट एंश्योर्स साउथ नॉर्थ कोऑपरेशन। अब यहीं अगर मैं ब्रिक्स की बात करूं जो मैंने तीसरा एग्जांपल लिया है, तो ब्रिक्स बेसिकली एंश्योर्स साउथ साउथ कोऑपरेशन। तो थोड़ा सा आपको अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड रखना है while talking or while writing on these particular issues, otherwise there would be many common areas that you will repeatedly touch upon। तो बार बार आपको कॉमन एरियाज मिलेंगे जहां से आपको वेंचर करना है। इसी तरीके से यहां पे मैं चौथे इंपॉर्टेंट चीज की बात करूं, व्हाट इज द फोर्थ इंपॉर्टेंट थिंग दैट दीज इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स प्रोवाइड टू the entire world or to their member nations। तो fourth and the last thing would be that they provide an opportunity to discuss macro economics। अब यहां पे आप माइक्रो इकोनॉमिक्स तो डेफिनेटली डिस्कस नहीं कर सकते हैं, बिकॉज दैट इज एन इंटरनल अफेयर फॉर एनी मेंबर स्टेट, फॉर एनी कंट्री। लेकिन आप यहाँ पे मैक्रो इकोनॉमिक्स, मैक्रो पॉलिसीज डेवलप कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं, जो ग्लोबल लेवल पे या एटलीस्ट रीजनल लेवल पे अफेक्ट करती हैं। तो दिस अप्लाइज अगेन टू ऑल दी थ्री काइंड और ऑल दी थ्री examples that we have taken under international informal organizations, that is G20, G7 and BRICS। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा अपनी अप्रोच डेवलप करिए। अब जब आप G7 के बारे में कभी कोई आंसर लिखेंगे तो ये जो पहला पॉइंट है, इफेक्टिव एंगेजमेंट, एक्टिव एंगेजमेंट एंड कैंडिड डिस्कशन, ये बहुत यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। ट्रांसनेशनल इश्यूज बहुत इंपॉर्टेंट है। देन यू विल हैव टू लुक एट द मेंबरशिप टू डिसाइड व्हाट काइंड ऑफ कोऑपरेशन इट इज प्रोवाइडिंग। एक और यहाँ पे पॉइंट आप ऐड कर सकते हैं, लास्ट फिफ्थ पॉइंट, दैट सच ऑर्गेनाइजेशंस एंश्योर ग्लोबल गवर्नेंस एंड कोऑपरेशन। तो ये जो कोऑपरेशन है, दिस इज डिफरेंट फ्रॉम नॉर्थ साउथ कोऑपरेशन और साउथ साउथ कोऑपरेशन।
अगर कोई एक ऐसा फोरम है जहां पे इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है तब भी आप नॉर्थ साउथ इंक्लूड कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा फोरम है जहां पे सिर्फ साउथ साउथ कोऑपरेशन है तो आप वो मेंशन कर सकते हैं। और G7 जैसा है तो आप नॉर्थ नॉर्थ कोऑपरेशन कर सकते हैं। लेकिन जब हम ग्लोबल गवर्नेंस और कोऑपरेशन की बात कर रहे हैं, सो बेसिकली वी आर टॉकिंग अबाउट कोऑपरेशन अमंग ऑल द मेंबर स्टेट्स टुगेदर इन अ कलेक्टिव मैनर। एंड ग्लोबल गवर्नेंस एक कॉमन वर्ड है कि ग्लोबली आपको कैसे पॉलिसीज फ्रेम करनी है, कैसे गाइडलाइंस आपको स्ट्रक्चर करनी है, एंड हाउ दे आर टू बी रोल्ड आउट। अब आप यहाँ पे एक बात और समझिए कि इनफॉर्मल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस का सिग्निफिकेंस ओवरऑल कैसा होता है, क्यों इनका एग्जिस्टेंस इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, डिस्पाइट दे बीइंग नॉन बाइंडिंग, डिस्पाइट दे बीइंग नॉन एनफोर्सेबल, दे डू नॉट हैव एनी पावर्स टू एनफोर्स देयर डिसीजंस, इंस्टेड दे आर आई एम सॉरी, इंस्टेड दे आर वेरी मच सिग्निफिकेंट। क्यों? क्योंकि ये इनफॉर्मल ऑर्गेनाइजेशंस हैं, तो यहां पे आपको बहुत ज्यादा लीवे प्रोवाइड होता है टू होल्ड डिस्कशंस विद द मेंबर स्टेट्स और एट द बायलैटरल लेवल। जैसे इंडिया है तो इंडिया जब ब्रिक्स समिट में जाता है तो इंडिया सिर्फ ब्रिक्स समिट वहां पे नहीं केटर करता है, इंडिया इनफैक्ट वहां पे अपने इंडिविजुअल रिलेशंस भी मेंटेन करता है। सिमिलरली जब इंडिया G20 में जाता है, लास्ट ईयर ओसाका समिट हुई थी, तो इंडिया ने ओसाका समिट में अपने बायलैटरल रिलेशंस के साथ भी उसने उस पर फोकस किया था। एंड इट ऑल्सो फोकस्ड अपॉन other informal groupings like JAI. JAI stands for Japan, America and India, which is a counterpart of RIC. RIC stands for Russia, India and China. तो इस तरीके से इंडिया सिर्फ उस पर्टिकुलर फोरम में फोकस नहीं करता है, अपने बायलैटरल रिलेशंस पे भी फोकस करता है, उस पर भी एम्फोसिस डालता है, और अदर इंपॉर्टेंट स्मॉलर रीजनल ग्रुपिंग्स पे भी फोकस डालता है। अब इससे फायदा क्या होता है, देखिए जैसे आपको एक पर्टिकुलर इशू पिक करते हैं क्लाइमेट चेंज, अब इस इशू को अगर आप डायरेक्टली पिक करेंगे, फॉर एग्जाम्पल आप यूनाइटेड नेशंस में इसको पिक करेंगे डायरेक्टली, UNEP में आप इसको पिक करेंगे डायरेक्टली, तो वहां पे कन्वर्जेंस अचीव करना बहुत ही डिफिकल्ट है, बिकॉज इट हैज लार्जर रिप्रेजेंटेशन, वहां पे कंसेंसस अचीव इतनी जल्दी नहीं हो पाता है। एंड देन दीज काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस कम इनटू पिक्चर विच आर इनफॉर्मल। ये बहुत ही ईजी बनाती हैं आपको कंसल्टेशंस होल्ड करना, ये बहुत ही ईजी बनाती हैं कि आप स्मॉल ग्रुपिंग लेवल पे, आप रीजनल लेवल पे, आप उन कंट्रीज के बीच में एटलीस्ट कन्वर्जेंस फाइंड आउट करो जो लाइक माइंडेड है। तो यहां पे नेगोशिएशन बार्गेनिंग करना बहुत इजी है। एंड व्हेन यू फाइंड कन्वर्जेंस एट सच प्लेटफॉर्म्स विच आर इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स, देन दे कैन बी फर्दर एस्केलेटेड, दीज इश्यूज देन कैन फर्दर बी एस्केलेटेड टू बी पिक्ड अप इन यूनाइटेड नेशंस, वर्ल्ड बैंक, IMF एंड एक्सेट्रा काइंड ऑफ ऑफिशियल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस। तो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में ये इंश्योर करते हैं कि कंसेंसस बना रहे, ये इंश्योर करते हैं कि जब उसका रोल आउट हो तो वो बाइंडिंग भी हो, बिकॉज उस लेवल पे अगर कोई कंसेंसस नहीं बनता है, अगर कन्वर्जेंस नहीं आता है, तो आप ये इंश्योर नहीं कर सकते हैं कि उस लेवल पे, UN लेवल पे आप उन चीजों को फिर एनफोर्स करें, उन चीजों को बाइंडिंग बनाएं। अब पेरिस एग्रीमेंट इसका सबसे फाइनेस्ट एग्जांपल है। पेरिस एग्रीमेंट में because of the lack of consensus, you cannot or you couldn't ensure the binding commitments. आपको वहां पे ये मेंशन करना पड़ा that contributions would be voluntary, that is countries will choose their own contributions, countries will come out with their own set of contributions in the form of NDCs and they won't be binding. कंट्रीज अपने हिसाब से अपने इनिशिएटिव्स चूज कर सकती है। एंड इट इज नाउ क्रिटिसाइज्ड, पेरिस एग्रीमेंट इज नाउ क्रिटिसाइज्ड कि जो क्यूमुलेटिव टोटल नेशनली डिटरमाइंड कंट्रीब्यूशंस आए हैं सारी कंट्रीज के एंड से, उन सबको मिला के भी अगर आप एट द एंड, बाय द एंड ऑफ दिस सेंचुरी अगर आप रिजल्ट देखोगे, तो वी आर नो वेयर नियर अचीविंग द टारगेट ऑफ 2 डिग्री सेल्सियस, वेल बिलो दी प्री इंडस्ट्रियल लेवल्स। हम इसको ओवरशूट कर रहे हैं एंड वी विल बी
इंक्रीजिंग द ग्लोबल टेम्परेचर बाय 3 to 3.5 डिग्री सेल्सियस। तो ये चीजें जब आप कोई कन्वेंशन एग्रीमेंट बाइंडिंग बनाते हो तो वहां पे ये चीजें आप ये इंश्योर कर सको कि वहां पे कन्वर्जेंस हो, उसके लिए इस टाइप के इनफॉर्मल प्लेटफॉर्म्स की जरूरत पड़ती है। साथ में इस टाइप के प्लेटफॉर्म्स की ज़रूरत इसलिए भी पड़ती है ताकि जो कंट्रीज़ हैं वो अपने इश्यूज रिजॉल्व कर सकें विथ ईच अदर। तो यहाँ पे बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है, जैसे ब्रिक्स है। तो जब इंडिया चाइना के बीच में डोकलाम क्राइसिस हुआ था, तो डोकलाम क्राइसिस ब्रिक्स समिट के थ्रू इंडिया और चाइना ने रिजॉल्व करा था अंडर दी presence of Russia, you can say. So these kind of organizations are helpful in many ways. अब हम G20 की बात करते हैं। G20 basically is a grouping of 20 countries which include 19 countries and European Union as its member. इसके अलावा इसकी membership फर्दर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस के साथ भी है, लाइक यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन है ऑफ वेरियस यूनाइटेड नेशंस स्पेशलाइज्ड एजेंसीज, एंड दिस ईयर समिट टुक प्लेस इन सऊदी अरेबिया एंड द डिक्लेरेशन ऑफ दिस पर्टिकुलर समिट is called as Riyadh Declaration because the summit took place in Riyadh. इंडिया ने इसमें पार्टिसिपेट किया। दिस समिट वाज वर्चुअल समिट ड्यू टू द कोविड-19 पेंडेमिक, and because it was a virtual summit, so it was not very much effective. It is called as muted affair. इसे म्यूटेड अफेयर बोला गया है, दैट इज इट कुड नॉट फोकस ऑन मेनी फ्रंट्स। यहाँ पे जो मेजर बातें हुई हैं दैट वर बेसिकली ऑन कोविड-19, ऑन हेल्थ, ऑन डेट रिलीफ, स्पेशली टू बी प्रोवाइडेड टू दी डेवलपिंग कंट्रीज। तो डेट रिलीफ मेजर्स कैसे प्रोवाइड किए जाएं डेवलपिंग कंट्रीज को हु आर रीलिंग under the debt crisis due to COVID-19 and lockdown kind of policy decisions. तो इन ये कुछ फोकस एरियाज थे ऑफ द G20 डिक्लेरेशन, एंड along with this G20 declaration also talked about reinforcing efforts to be put in for anti-money laundering and combating finance terrorism, combating terror financing, I'm sorry, कॉम्बैटिंग टेरर फाइनेंसिंग। तो ये कुछ फोकस एरियाज थे जहां पे बात करी गई दैट वी विल इंश्योर इक्विटेबल ट्रीटमेंट ऑफ कोविड-19 अमंग द मेंबर स्टेट्स, वी विल इंश्योर debt relief measures for developing countries, and we will strengthen anti-money laundering and combating terror financing. तो ये डिक्लेरेशन के कुछ की एरियाज थे। ऐसा जैसे मैंने आपको बताया कि एक डिक्लेरेशन म्यूटेड अफेयर था, इसमें कुछ मेजर सिग्निफिकेंट आउटकम नहीं आया है। सो दिस डिक्लेरेशन ऑफ 2020 डज नॉट बिकम वेरी मच इंपॉर्टेंट, बट डेफिनेटली G20 रिमेन्स टू बी इंपॉर्टेंट। तो G20 के एक बार मेंबरशिप के बारे में देख लेते हैं, एंड लेट अस हैव अ लुक एट द मेंबरशिप ऑफ G20 एंड अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ G20। G20 कितना सिग्निफिकेंस है। टू चेक सिग्निफिकेंस ऑफ एनी ऑर्गेनाइजेशन यू मस्ट have an idea about the role played by that particular organization, point number 1, role played, and secondly you must have an idea about the global representation of that particular organization. तो G20 में there are 19 countries plus 1 EU, and also Spain country takes part in the G20 meetings. तो यहाँ पे basically there are more members than the name, as the name suggests. तो नेम में तो G20 है, but there are many more members क्योंकि यूरोपियन यूनियन में ही 28 मेंबर कंट्रीज हैं, राइट। अब यहाँ पे हम इसका रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं। तो G20 रिप्रेजेंट्स और has near around 80% of the world's population. So it represents 80% of world's population. This makes it really significant and relevant as well. Secondly, it accounts for
75% of global trade. It accounts for 75% of global trade and 80% of टोटल वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट. पूरे दुनिया में जितना इकोनॉमिक आउटपुट है उसका 80% G20 कंट्रीज या G20 के मेंबर कंट्रीज के थ्रू आता है. सो दिस मेक्स G20 अ वेरी रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट ऑर्गेनाइजेशन. इसने ऐसे आज तक कौन से रोल प्ले किए हैं विच मेक्स दिस ऑर्गेनाइजेशन मोर रेलेवेंट. इसका जो एग्जिस्टेंस है वो कैसे जस्टिफाई होता है. सो देयर आर फ्यू रोल्स विच डेफिनेटली यू कैन मेंशन दैट द G20 हैज प्लेड सिंस इट्स एस्टैब्लिशमेंट. पहले थोड़ा सा मैं आपको एस्टैब्लिशमेंट के बारे में बता दूं. G20 का एस्टैब्लिशमेंट 1999 में हुआ था एंड 2008 में इसने ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस के अगेंस्ट बहुत ही इफेक्टिव रोल प्ले करा व्हेन इट केम इनटू लाइमलाइट. 2011 के बाद से इसका ऑब्जेक्टिव और यू कैन से इसका मैंडेट एक्सपैंड कर दिया गया. तो 2011 तक व्हाट वाज इट्स मैंडेट. G20 का उस वक्त मैंडेट था अप टिल 2011 that is international economic cooperation. So this was basically an economic consultation forum, economics cooperation, economic cooperation. So it basically dealt with economic cooperation about with the financial stability, financial system of the entire world. But later on after 2011 इसका mandate को expand कर दिया गया to include socio developmental issues, social and डेवलपमेंटल इश्यूज एज वेल. और यहीं से इसका क्रिटिसिज्म भी हम पिक करेंगे लेटर ऑन. क्यों पिक करेंगे? देखिए, जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक स्पेसिफिक इशू के साथ डील कर रही होती है तो उसमें कन्वर्जेंस अचीव करना, उसमें कंसेंसस अचीव करना रिलेटिवली इजी होता है. बट व्हेन यू ब्रिंग मल्टीपल टॉपिक्स इनटू अ पर्टिकुलर फोरम जहां पे रिप्रेजेंटेशन स्पेशली थोड़ा ज्यादा है, इतने ज्यादा कंट्रीज जहां पे प्रेजेंट हैं, तो वहां पे कन्वर्जेंस अचीव करना दिक्कत है. एंड those disputes, those conflicts with a particular or in a particular topic often witnesses spillover effects. अगर एक किसी इशू पे कोई दो कंट्रीज या कुछ कंट्रीज आपस में कन्वर्जेंस नहीं अचीव कर पा रही हैं तो यूजुअली ऐसा देखने को मिलता है कि बाकी टॉपिक्स में भी इसके स्पिल ओवर इफेक्ट्स आ जाते हैं और ओवरऑल पूरी जो फंक्शनिंग है एक बॉडी की वो इसके कारण अफेक्ट होती है. तो अब हम बात कर रहे थे सिग्निफिकेंस की. सिग्निफिकेंस हमने देख लिया. रोल प्लेड, क्या इसने इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है? तो एक तो मैंने आपको बता दिया 2008 का global financial crisis wherein this body was very much effective in restoring the economic growth, global economic growth, global economic revival में इसने बहुत ही important role play करा है. क्यों play करा, क्यों ये effectively role play कर पाई? The idea is very much clear because it had a single mandate, that is international economic cooperation. यहाँ पे सारी countries जो member countries हैं जो मेजर शेयर होल्ड करती हैं इन द ग्लोबल ट्रेड, इन द वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटपुट एंड हैव लार्ज पॉपुलेशन, वो सारी इसकी मेंबर्स हैं. और सब जब यहाँ पे कंसल्टेशन के लिए आई, आपस में जब इन्होंने डिलिब्रेशंस होल्ड करे, देन दे वर इन अ वेरी इजी मैनर एबल टू रिकवर ग्लोबल इकोनॉमी फ्रॉम फाइनेंशियल क्राइसिस बिकॉज दिस बॉडी हैड अ सिंगल मैंडेट, दैट इज टू हैव कोऑपरेशंस ऑन द इकोनॉमिक फ्रंट और ऑन द फाइनेंशियल स्टेबिलिटी सिस्टम्स. इसके बाद 2011 के बाद से इसका थोड़ा सा रिलेवेंस कम हुआ, इसके आउटकम्स थोड़े से शेक हुए, but still this was very much effective as it came out with BEPS or BEPS, also called as base erosion price shifting. बेस एरोशन प्राइस शिफ्टिंग के ऊपर इसने कंसेंसस अचीव करा एंड इट इज द रिजल्ट ऑफ BEPS दैट टुडे वी आर टॉकिंग अबाउट डबल टैक्स एंटी अवॉइडेंस ट्रीटीज, एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट्स एंड सच काइंड ऑफ अ थिंग्स which definitely help
not only member countries but the entire world to prevent money laundering, hawala transactions kind of activities to take place. तो इसीलिए बेप्स इसका एक सक्सेस माना जाता है. इसके अलावा इसकी जो सक्सेस है दैट बेसिकली रेस्ट इन द रेफ्यूजी क्राइसिस. 2016 में रेफ्यूजी क्राइसिस हुआ था ड्यू टू द इनस्टेबिलिटी इन द मिडिल ईस्ट रीजन, जब इस फोरम ने बिकॉज इट टुक सोशो डेवलपमेंटल इश्यूज एज वेल अंडर इट्स मैंडेट, तो इसने रेफ्यूजी क्राइसिस पे भी कंसेंसस अचीव करा था और काफ़ी अच्छी गाइडलाइन सपोर्ट एंड framework provide करा था to the countries from where the refugee crisis was taking place and to the countries which were receiving or which were at the receiving end, जहाँ पे refugees आ रहे थे मोस्टली दी यूरोपियन कंट्रीज. तो क्योंकि यूरोपियन यूनियन इसका पार्ट है तो यहाँ पे इसीलिए कंसेंसस अचीव कर पाए हम सब लोग और ये सारी कंट्रीज आपस में. फिर 2015 में इसने एनवायरनमेंट रिलेटेड भी एक अच्छा सिग्निफिकेंट स्टेप लिया दैट इज विद इन रिलेशन टू GIF और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटी. तो ये कुछ इंपॉर्टेंट यहाँ पे इसके सक्सेस हैं विच डेफिनेटली कैन बी यूज्ड बाय यू एज एग्जांपल्स टू शोकेस द रेलेवेंस ऑफ G20, right? Yeah, you can simply showcase these things to say that how significant is G20. अब हम कुछ मेजर कंसर्न्स की बात करते हैं विच आर रिलेटेड टू G20. तो सम मेजर कंसर्न्स ऑलरेडी हम देख चुके हैं. ओके, कंसर्न्स के पहले मैं एक बार आप लोगों के साथ वापस शेयर करता हूं बेनिफिट्स. तो बेनिफिट्स हमने अभी एग्जाम्पल के तौर पे देख लिए, दैट इज GFC क्राइसिस, रेफ्यूजी क्राइसिस, बेप्स, यहां पे कैसे इसने बेनिफिट्स शो करे हैं, बट दोज आर एग्जाम्पल्स. एक बार क्विकली रिकॉल कर लेते हैं सारे पॉइंट्स जो आप G20 में कोट करेंगे. दैट इज बेनिफिट्स ऑफ G20 फॉर द एंटायर वर्ल्ड एंड ऑल्सो फॉर मेंबर स्टेट्स. तो पहला बेनिफिट क्या है? पहला बेनिफिट है एक्टिव एंगेजमेंट and candid discussions. It provide a platform to all the member states for active engagement and candid discussions. ये पहला इसका बेनिफिट हो गया. दूसरा बेनिफिट, it provides opportunity to discuss key transnational issues like एग्जाम्पल यहाँ पे कोट कर दीजिए, like terrorism, climate change, money laundering, etc. तीसरा, it provides again an opportunity for North-South cooperation as it has member states both from emerging world and the emerged world, that is developing and developed countries. Fourth, it provides an opportunity to come out or to फॉर्म कन्वर्जेंस कंसेंसस ऑन मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज, क्योंकि G20 का अभी भी मेजर ऑब्जेक्टिव इकोनॉमी से रिलेटेड ही है, इसीलिए मैक्रो इकोनॉमिक पॉलिसीज आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं. और यहाँ पे आप ये भी बोल सकते हैं दैट इट इज एसेंशियल फॉर ग्लोबल गवर्नेंस एंड ओवरऑल कोऑपरेशन. तो ये कुछ बेनिफिट्स हैं ऑफ G20 टू वर्ल्ड. नाउ फ्यू बेनिफिट्स फॉर इंडिया. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को क्या बेनिफिट मिलेगा G20 के साथ? तो पहला बेनिफिट विल बी कॉमन. इट प्रोवाइड्स इंडिया एन अपॉर्चुनिटी टू इंटरेक्ट नॉट ओनली विथ G20 एज अ ग्रुपिंग बट ऑल्सो विथ इट्स इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स. यहाँ पे आप एग्जाम्पल किसका देंगे? ओसाका समिट जो लास्ट ईयर कंडक्ट हुई थी इन 2019 उसका देंगे, जहाँ पे इंडिया ने मल्टीपल बायलैटरल टॉक्स होल्ड करी थी विथ अदर इंडिविजुअल मेंबर स्टेट्स एंड ऑल्सो इट हेल्ड टॉक्स विथ द ग्रुपिंग्स, इनफॉर्मल ग्रुपिंग्स लाइक जे. इसके साथ इंडिया को अपॉर्चुनिटी मिलती है टू वॉइस और टू
press some key issues that affect India's policy or India's status in a particular region, that is in the South Asian region. तो इंडिया यहाँ पे टेररिज्म का इशू रेज कर सकती है, इंडिया यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग का इशू रेज कर सकती है, और इंडिया यहाँ पे इसी तरीके से जो भी इश्यूज इंडिया को अफेक्ट करते हैं, इंडिया यहाँ पे वो इश्यूज रेज कर सकती है. Third, India becomes a collective voice for its region, because India being the leader of South Asian nation or South Asian region is definitely representing entire region into the G20. So it presents their collective voice of South Asian country or of South Asian region. Then India raises a common issue at all the international platforms and multilateral organizations. Those are related to UN reforms. UN reforms थोड़ा सा restrictive word है, आप इसकी जगह यूज कर सकते हैं norm. Since India has become non-permanent member of UNSC for 2 years, starting from 2021 January, India has set an objective, that is norm, new orientation for reformed multilateralism. So India is giving voice to reforms at multilateral institutions. मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस में सिर्फ यूनाइटेड नेशंस नहीं है, वी आर टॉकिंग अबाउट ईच एंड एवरी मल्टीलैटरल इंस्टीट्यूशंस, दोज आर टू बी रिफॉर्म्ड. तो यूएन रिफॉर्म्स इंडिया यहाँ पे प्रेस करता है, एंड देयर आर मेनी कंट्रीज हु साइड विथ इंडिया ऑन दिस पर्टिकुलर इशू, बिकॉज इंडिया यहाँ पे बहुत ही टाइम से एक्टिवली इन्वॉल्व है. सो दीज आर सम ऑफ द पॉइंट्स जो इंडिया के लिए बेनिफिशियल हैं. एक और यहाँ पे आप पॉइंट लिख सकते हैं, स्पेसिफिकली ट्रेड एंड कॉमर्स, अगेन बिकॉज G20 इज economic cooperation, it is more related to economic cooperation, although अभी इसमें सोशो डेवलपमेंटल इश्यूज भी आने लगे हैं, बट इसका अभी भी जो मेजर रोल है दैट इज ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स. तो इसीलिए यहाँ इकोनॉमिक कोऑपरेशन, तो इसलिए ट्रेड एंड कॉमर्स को इंडिया यहाँ पे लेवरेज कर सकता है, एज इंडिया इज नाउ मूविंग टूवर्ड्स सेल्फ रिलायंट इंडिया. हम सेल्फ रिलायंट इंडिया की तरफ मूव कर रहे हैं. वी हैव नॉट पार्टिसिपेटेड इन RCEP, बट स्टिल वी वांट टू इंटीग्रेट आवर मार्केट्स, और वी वांट टू सस्टेन आवर इंटीग्रेशन विद द ग्लोबल सप्लाई चेन्स एंड ग्लोबल वैल्यू एडिशन चेन्स, जिसके लिए ज़रूरी है कि इंडिया इंडिविजुअल लेवल पे, ये रीजनल लेवल पे अपने टाइज मेंटेन करता चले विद द कंट्रीज हु आर part and member of RCEP and other similar kind of forums. तो ये कुछ मेजर बेनिफिट्स हैं इंडिया के लिए. अब हम कंसर्न्स की बात करते हैं. तो पहला कंसर्न वही है दैट दीज बॉडीज आर बेसिकली इनफॉर्मल, दीज बॉडीज आर नॉन बाइंडिंग, दे प्रोड्यूस नॉन बाइंडिंग कमिटमेंट्स, एंड दे डू नॉट हैव enforcement related powers, so they cannot enforce their decisions. This makes these kind of bodies mere consultative bodies, but nothing more than that. तो ये सिर्फ कंसल्टेटिंग बॉडीज, ये कंसल्टेटिंग फोरम्स की तरह एक्ट करता है. इसके अलावा अगर आपको कुछ और इंपॉर्टेंट कंसर्न्स बताने हैं स्पेसिफिक टू G20, तो वो हम बोल सकते हैं अबाउट द प्रिंसिपल ऑफ एक्सक्लूसिविटी फॉलोड इन G20. एक्सक्लूसिविटी कैसे, आप इसका मेंबरशिप देखिए. साउथ अफ्रीका से सिर्फ एक कंट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज अफ्रीका से सिर्फ एक कंट्री यहाँ पे प्रेजेंट है, दैट इज साउथ अफ्रीका. तो पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट करने वाली सिर्फ एक कंट्री है साउथ अफ्रीका, एंड दिस बेसिकली एक्सक्लूड्स द एंटायर कॉन्टिनेंट. इसी तरीके से काफ़ी सारी कंट्रीज हैं जो यहाँ पे अपना प्रेजेंटेशन नहीं दे पा रही हैं, एंड यू कैन से दैट देयर इज स्टिल लार्जर प्रेजेंस ऑफ नॉर्थ कंट्रीज और द डेवलप्ड कंट्रीज दैन द थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, बिकॉज यूरोपियन यूनियन की 28 कंट्रीज अगर आप इंक्लूड कर लेंगे तो डेवलप्ड कंट्रीज का वेटेज यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है. तो दो इट इज North-South Cooperation Consultative Forum, but it is somewhere inclined towards the North countries or North cooperation. तो ये जो एक्सक्लूसिविटी है, इसको यहाँ पे एक कंसर्न की तरह शो किया जाता है.
then there are no follow-up mechanisms in the G20 like forums. Follow-up mechanism again एक कॉमन पॉइंट है जो आप हर जगह यूज करेंगे. ये सारे कॉमन पॉइंट है जिन पे मैं मार्क कर रहा हूँ, ये आप हर जगह यूज करेंगे. जो भी इनफॉर्मल कंसल्टेशन फोरम होगा, भले वो G7 हो, G20 हो या ब्रिक्स हो, हर जगह ये पॉइंट्स कॉमन रहने वाले हैं. तो दिस मेक्स योर बेसिकली अप्रोच टूवर्ड्स अदर ऑर्गेनाइजेशंस वेरी इजी. जो अभी तक आपको शायद कंफ्यूज कर रहा होगा, वो अब आप उसको अब बहुत अच्छे से प्रेजेंट कर पाएंगे. And last problem, again common problem, is that of internal conflicts. So these countries, these member states have conflicts among themselves. जब इनके आपस में conflicts होते हैं तो convergence achieve करना थोड़ा सा और ज़्यादा difficult हो जाता है. But again these are better platforms than the international organizations which are of formal nature like UN and World Bank and other organizations. क्योंकि यहाँ पे आपके पास फिर भी बाकी बहुत सारे रास्ते हैं. यू हैव मेनी अपॉर्चुनिटीज, मेनी पॉसिबिलिटीज टू कम अप ऑन अ कॉमन पेज because of the informal nature, because of absence of any charter of rules, because of absence of any set procedure. इसीलिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स हैं. बट अगेन इसको आप कंसर्न में मेंशन करेंगे, बट अगेन इसको आप सिग्निफिकेंस में भी मेंशन कर सकते हैं जो हमने नहीं मेंशन किया. बट वी हैव अंडरस्टूड द क्रक्स आउट हियर दैट हाउ दिस लीड्स अ पर्टिकुलर इशू to the international organizations where convergence can be achieved in a broader sense. So this was the benefits for the world, for the India of G20, concerns related to G20. अब हम बात करते हैं कुछ इंडिया के इम्पॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशंस टू G20. तो सिर्फ दो कॉन्ट्रीब्यूशन मैं आपको बताऊंगा एज एन एग्जांपल, आप यूज कर सकते हैं. इंडिया ने दो कॉन्ट्रीब्यूशन इंपॉर्टेंट है. एक ओसाका समिट लास्ट ईयर, इंडिया ने 5 आईज कंट्रीब्यूट किए थे. इंडिया ने 5 आईज की बात करी थी. दैट इज 5I ईयर स्टैंड फॉर इनोवेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, इन्वेस्टमेंट एंड इंडिजनाइजेशन एंड इंक्लूसिवनेस. तो ये 5I की बात करी थी. आई अंडरस्टैंड पांचों I और इस तरीके के एब्रिविएशंस याद रखना इज नॉट एन ईजी टास्क. बट इवन इफ यू कैन रिमेंबर 5I एंड कैन ड्रॉप इन द एग्जामिनेशन दैट हाउ इंडिया हैज कंट्रीब्यूटेड टू G20, देन दैट वुड बी मोर देन सफिशिएंट. इसी तरीके से इंडिया ने 9 पॉइंट एजेंडा दिया था टू दी G20 समिट इन 2018 जब अर्जेंटीना में समिट हुई थी. तो इस 9 पॉइंट एजेंडा में इंडिया अगेन picked up some pressing issues like terrorism, money laundering, FATF, its support to FATF, climate change and etc. तो इंडिया हमेशा इन्हीं इश्यूज को पिक करता है which are of its own concern. तो these are some important contributions to G20 from India's end जो आप यहाँ पे डेफिनेटली यूज या कोट कर सकते हैं. एक लास्ट चीज जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहूंगा अब, दैट वुड बी वे फॉरवर्ड. तो वे फॉरवर्ड इन सारी मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन का पहले तो आप यही मेंशन कर सकते हैं कि इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स यहाँ पे रिजॉल्व करने के और ज्यादा मैकेनिज्म्स या चैनल्स क्रिएट करे जाएं विच कैन इंक्लूड डिप्लोमेसी ऑफ वेरिंग ट्रैक्स like 1.5 ट्रैक और इवन 2 ट्रैक. तो 2 ट्रैक डिप्लोमेसी, 1.5 ट्रैक डिप्लोमेसी के चैनल्स यहाँ पे हमेशा ओपन किए जाएं ताकि जो भी कॉन्फ्लिक्ट्स हैं अमंग दी मेंबर नेशंस वो कंटिन्यूअस बेसिस पे पिक किए जाएं और उनको रिजॉल्व किया जाए सो दैट वी कैन अचीव ग्रेटर कॉन्सेंसस एट द इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एट द ग्लोबल लेवल. सेकेंड आप यहाँ पे बात करेंगे अबाउट आउटरीच. These organizations should ensure that they have effective outreach. जैसे मैं G20 की बात करूं तो G20 में अफ्रीका कॉन्टिनेंट को लार्जली एक्सक्लूड किया गया है, बट इट कैन इंश्योर दैट इट पिक्स few of the challenges, few of the concerns specific to African continent, ताकि वहां पे भी आप इंक्लूसिवनेस, अब फिर से आप इंडिया को लेके आ सकते हैं जहां पे इंडिया ने 5I की बात करी थी और एक I इंक्लूसिवनेस को
indicate करता है. So you can say here that India has already indicated towards inclusiveness, and we strive hard not only to ensure inclusive society in our own country but also the inclusive global society. तो इस तरीके के outreach programs आप conduct करो, pick those issues as well which are not very important for the member states but are important at the larger global scale. तो outreach programs यहाँ पे इंड्यूस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी इस टाइप की फोरम्स का और रेलेवेंस एंड सिग्निफिकेंस इंप्रूव होगा. और कुछ मैकेनिज्म्स यहाँ पे जरूरी हैं फॉर डिसीजन मेकिंग. तो डिसीजन मेकिंग के रिस्पेक्ट में यहाँ पे जरूरी है कि कुछ मैकेनिज्म्स, कुछ एनफोर्समेंट टूल्स क्रिएट करे जाएं अमंग दी ग्रुपिंग्स और अमंग दी मेंबर स्टेट्स. ब्रिक्स की अब मैं बात करूं तो देखिए, ब्रिक्स में एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव लिया, दैट इज न्यू डेवलपमेंट बैंक. लेकिन अपार्ट फ्रॉम दैट ब्रिक्स ने कभी भी कोई एक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव नहीं लिया किसी रीजन के स्पेसिफिक या किसी एक पर्टिकुलर इशू के स्पेसिफिक. वहां पे भी कंसल्टेशन फोरम की तरह बस डिस्कशंस होते हैं, दे कम आउट विद डिक्लेरेशंस बट देयर आर नो फॉलो अप्स ऑफ द सेम. इसी तरीके से G20 भी है, बट G20 के पास ज्यादा कलेक्टिव पावर है, इसके पास ज्यादा टूल्स हैं, ज्यादा रिप्रेजेंटेशन है. तो ये डेफिनेटली कुछ ऐसे इश्यूज पिक कर सकते हैं, वो रीजन स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, वो इश्यूज भी हो सकते हैं अपने आप में, लाइक मनी लॉन्ड्रिंग एंड एक्सेट्रा. कोई भी इशू हो सकता है. अभी वैक्सीन का इशू चल रहा है कि वैक्सीन किस तरीके से इक्विटेबल उसका डिस्ट्रीब्यूशन इंश्योर किया जा सकेगा. तो दीज काइंड ऑफ इश्यूज कैन बी पिक्ड which will enhance the relevance of these kind of international organizations. Similarly, connectivity एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू है जो यहाँ पे पिक किया जा सकता है बाय ब्रिक्स, बाय G20 और बाय G7, कि आप कैसे कनेक्टिविटी, ग्लोबल कनेक्टिविटी आप इंश्योर करोगे. ग्लोबल कनेक्टिविटी इन टर्म्स ऑफ फिजिकल कनेक्टिविटी एंड ऑल्सो वर्चुअल कनेक्टिविटी, एंड ऑल्सो ग्लोबल सप्लाई चेन्स को आप कैसे इंटीग्रेट करोगे, वैल्यू एडिशन को कैसे आप इंटीग्रेट करोगे. तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीजें इंश्योर कर सकते हैं. ऑल्दो उसमें कन्वर्जेंस अचीव करना उतना इजी नहीं होता है. इसका एग्जांपल अगेन इंडिया है कि ओसाका समिट में लास्ट ईयर एक और सब समिट हुई विद इन दी ओसाका समिट कॉल्ड एज डिजिटल इकोनॉमी समिट. तो उसमें बेसिकली बात करी गई फ्री डेटा फ्लो की. तो इंडिया एब्सटेन्ड फ्रॉम दैट पर्टिकुलर समिट बिकॉज इंडिया हैड अ पॉलिसी, और इंडिया इज स्ट्राइविंग वेरी हार्ड टू come up with a policy of data localization. It does not want free flow of data because it believes in data sovereignty, and it believes that data is the new oil and we can tap data for various other purposes. तो इसीलिए इस तरीके से कंसर्न्स बहुत ज़्यादा रेज होते हैं. और एक और लास्ट पॉइंट मैं आपसे यहाँ पे डिस्कस करूंगा, स्किप हो गया मेरे दिमाग से. A good keyword actually that you can use, and it is low or least common denominator. Least common denominator, ये कंसर्न में आप ऐड करेंगे जब भी इन ऑर्गेनाइजेशंस में, इन प्लेटफॉर्म्स पे कोई डिक्लेरेशन किया जाता है, किसी एक इशू पे कन्वर्जेंस अचीव करी जाती है, तो वो उतना ज़्यादा प्रेसिंग नहीं हो पाता, वो उतना ज़्यादा इफेक्टिवली रोल आउट नहीं हो पाता इन मोस्ट ऑफ द केसेस. व्हाई? बिकॉज ऑफ दिस पर्टिकुलर इशू कॉल्ड एज लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर. जैसे मैं अभी आपको एग्जांपल दे रहा था कि इंडिया ने डेटा फ्लो पे एग्री नहीं करा, फ्री डेटा फ्लो पे एग्री नहीं करा. अब नेक्स्ट ईयर ये लोग क्या करेंगे? नेक्स्ट ईयर हो सकता है उस पर्टिकुलर प्रोविजंस को थोड़े से और फ्लेक्सिबल बनाए जाए. फिर कोई कंट्री उसको नहीं मानेगी, फिर थोड़े से और फ्लेक्सिबल बनाए जाएंगे. फ्लेक्सिबल बाय फ्लेक्सिबल आई मीन उसको और डाइल्यूट करा जाएगा. सो यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग द थिंग्स, यू कीप ऑन डाइल्यूटिंग द सजेशंस एंड द वे फॉरवर्ड, सो दैट ईच एंड एवरी कंट्री कैन एग्री एट अ पॉइंट. तब तक आप डाइल्यूट करते हो जब तक सारी कंट्रीज उस पर मान ना जाए. एंड एट द एंड व्हाट यू हैव बेसिकली गॉट इन द फॉर्म ऑफ कंसेंसस, यू हैव गॉट लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर विच इज नॉट सिग्निफिकेंट. तो ये जो लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर वाला अप्रोच है, ये जो प्रिंसिपल है, ये बहुत ही एक अच्छा कीवर्ड है, एक
अच्छा आपको आपके आंसर्स को हाईलाइट कर सकता है, एंड इट इज़ अ गुड थिंकिंग एज वेल, बिकॉज ऐसा ही होता है। पेरिस एग्रीमेंट भी ऐसा ही कुछ है, कंटिन्यूस उस पर टॉक्स चलें। एट द एंड, एट व्हाट पॉइंट डिड यू कन्वर्ज कि आप अपने खुद के कॉन्ट्रीब्यूशंस रिलीज करो, विच विल बी वॉलेंट्री इन नेचर, कोई बाइंडिंग उसमें कुछ भी नहीं होगा। सो एंड द रिजल्ट इज दैट वी आर डेफिनेटली नॉट गोना अचीव the emission reduction targets by this century end, because हमारे जो cumulative contributions हैं वो सब मिला के एटलीस्ट 3 to 3.5 डिग्रीज का इंक्रीज करने वाले हैं ग्लोबल टेम्परेचर। सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स बेसिकली आर रिजल्ट ऑफ ग्लोबल कॉमन लीस्ट कॉमन डिनोमिनेटर काइंड ऑफ अप्रोच। ओके, so we have discussed about G20, its benefits to the world, that is significance for India, significance for world, its concerns, and also prospects of G20, both the form of way forward and how G20 can be good and relevant for other international organizations as well. इसके साथ मैंने आपको बहुत ही एक important tool provide करने की कोशिश करी है, that is an approach towards international relations। फर्दर अप्रोच के लिए आप प्लीज मस्ट रीड करंट अफेयर्स ज्वाइन करें, फ्री ऑफ कॉस्ट है। डेली बेसिस पे मैं उसमें करंट अफेयर्स डिस्कस करने की कोशिश करता हूं आप लोगों के साथ फ्रॉम अ वेरी डिफरेंट परस्पेक्टिव। सो देयर वी नॉट ओनली अंडरस्टैंड करंट अफेयर्स बट वी ट्राई टू डेवलप स्किल्स, ताकि हम उन करंट अफेयर्स को अलग अलग परस्पेक्टिव से अप्लाई कर सकें इन दी एग्जामिनेशन, और ऐसी अप्रोच आप वहां से और ज़्यादा सीख सकें, ताकि आपका जो पूरा प्रोसेस है पढ़ने का, इतने कम टाइम में आपको इतना सब कुछ पढ़ना है, उसमें आप एक स्मार्ट अप्रोच अडॉप्ट कर सकें और आप इजीली इस एग्जामिनेशन को क्रैक कर सकें इन द गिवन टाइम फ्रेम। So that was all that I had to discuss with you all with respect to G20. Thank you all for your patient listening.